Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaghar representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about the split company data and moving ahead with the new financial year. So before moving ahead to the today's topic, just have a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So now moving ahead with the today's topic. So now just welcome our speakers. So Urmila, are you here? Yes, ma'am. Okay. Ms. Payal, are you here? Yes, ma'am. Okay. And the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, I'm available. Thank you. Hearty welcome all of you. So now I request Urmila and Payal to move ahead with your presentation. Hello. Good evening, everyone. Myself, Urmila Gharde, representing on behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited. On behalf of management and entire team of Rajlakshmi Solution, I would like to welcome on today's topic, split company data and moving to next financial year in Tally Prime. Next page. How to change financial year. With Tally Prime, you can quickly close the books of accounts for a financial year and move your company data to the next financial year. You can achieve this in multiple ways. Tally Prime handling your tax liability and input credit when company data is split at the beginning of new financial year is also simplified in Tally Prime. टैली प्राइम में न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना बहुत आसान है और आपकी जो लाइबिलिटीज एंड इनपुट क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बाद भी नेक्स्ट ईयर में आ जाती है. नेक्स्ट पेज. हाउ टू चेंज फाइनेंशियल ईयर. Tally Prime comes with a useful tool called Split, which will help you to manage volume of your data. If your business likes a fresh start every financial year, then you can split your data and maintain a fresh batch of data every year. Tally Prime में आप हर साल ईयर चेंज कर सकते हैं, तो हर फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपको Tally Prime में देखने मिल जाएगा. Before splitting the data, the verify feature automatically detects any error in the data and allows you to correct them quickly. Tally Prime में आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से पहले आप डेटा वेरीफाई कर सकते हैं. अगर आपके डेटा में कुछ एरर है तो वो आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, तो उस एरर को आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज. एडवांटेजेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डेटा. Reduce data size, multiple year tally data will tend to make tally work slow. Splitting of data will reduce the data size and increase the speed. अगर आपका मल्टीपल ईयर का डेटा एक ही कंपनी में है तो आपका टैली स्लो वर्क करता है. अगर आप डेटा को हर साल स्प्लिट करते हैं तो आपके डेटा की जो साइज है वो कम हो जाती है और आपका जो टैली है वो स्मूथली वर्क करता है. Secure all data and start work in different folder. Splitting of data will ensure the security of data of the previous year. इसमें आप अपना पुराना डेटा सिक्योर रख सकते हैं. Maintain separate folder for each financial year. आप आपके फाइनेंशियल ईयर का डेटा फोल्डर वाइज भी रख सकते हैं. Security setup will automatically carried forward in the new split company. नए स्प्लिट कंपनी में जो सिक्योरिटी सेटअप है वो ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाती है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इट्स ओवर टू यू पायल फॉर लाइव डेमो सेशन. थैंक यू. Thank you, Mila, for nice presentations. Hello everyone, myself Payal Mistry. I am representing live demo on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today's topic.
split company data and moving to the new financial year. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूंगी कि टैली प्राइम जब हम लोग डेटा स्प्लिट करते हैं उससे पहले जो फीचर्स करना पड़ता है वो कैसे करते हैं। तो टैली प्राइम में कंपनी स्प्लिट कैसे करते हैं वो आज मैं आपको यहाँ बताऊंगी, और स्प्लिट करना क्यों ज़रूरी होता है, ये उसका बेनिफिट क्या होता है और ये कब स्प्लिट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैं ये वीडियो में बताऊंगी। जैसे कि आपने 22-23 का पूरा ट्रांजेक्शन एक ही कंपनी में किया है और 23-24 का जो 1 अप्रैल से जो बिलिंग स्टार्ट किया है वो भी आपने पर्टिकुलर उसी कंपनी में स्टार्ट किया है, तो आप आपकी उसी कंपनी को स्प्लिट करना चाहते हो, तो 22-23 एंड 23-24 के डेटा को अलग अलग करना चाहते हो तो आप किस तरह से कर सकते हो, आपको ये चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ तो अगर अभी आप स्प्लिट करना चाहते हो तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी 22-23 का ट्रांजेक्शन है वो सारा कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो बैंक ट्रांजेक्शन हो या परचेज का हो या फिर वो एडजस्टमेंट एंट्री हो, या फिर वो सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद स्प्लिट करना, उसका स्प्लिट का रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप स्प्लिट करते हो तभी 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ऑटोमेटिक आपका न्यू कंपनी जो क्रिएट होती है वो उसमें ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, तो आपको फिर भी ओपनिंग बैलेंस में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपने सारी एंट्रीज कंप्लीट कर लिया है तो पार्टी का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा बाकी सारे लेज़र या बैंक लेज़र या वाउचर्स ओपनिंग बैलेंस होगा वो सारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि आपको डेमो के हिसाब से बता रही हूँ, फर्स्ट ऑफ तो आपको जब डेटा आप स्प्लिट करते हो तभी यहाँ पे टेक्निकल में एक ऑप्शन दिया है डेटा करके। सबसे पहले हम लोग को वेरीफाई करना पड़ता है, डेटा में जाके स्प्लिट में जाके वेरीफाई डेटा, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप वेरीफाई करोगे तभी अगर आपको यहाँ पे कोई एरर्स आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एरर सॉल्व करने का, वहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपके डेटा में कोई भी एरर्स नहीं है तो यहाँ पे नो एरर्स फाउंड करके शो करेगा। सेकेंड चीज, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे डेटा में जाके स्प्लिट डेटा में जाना है, यहाँ पे आपको पूछेगा स्प्लिट फ्रॉम डेटा, तो जब का आपका 22-23 और 23-24 का डेटा सेपरेट होना चाहिए तभी यहाँ पे स्प्लिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ही आपको यहाँ पे रखना है। जब ये स्प्लिट होके आएगा तभी 21-22 और 22-23 करके ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्प्लिट पे ही रखा है, कंटिन्यू स्प्लिट द कंपनी डेटा, तो यस करना है। यानी देखिए आप यहाँ से ये 3 स्टेप में स्प्लिट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा डेटा स्प्लिट हो चुका है। फर्स्ट कंपनी मेरी ओपन हुई है 21-22 एंड 22-23 तो जो फर्स्ट कंपनी है हम सबसे पहले यहाँ पे ये जो ABC लिमिटेड कंपनी है उसमें मेरा सारा डेटा है वो पूरा स्प्लिट होके मेरी 2 कंपनी क्रिएट हुई है, तो फर्स्ट वन क्लोज करूंगी फॉर ABC लिमिटेड कंपनी। अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो क्लोजिंग है वो सेकंड कंपनी में ओपनिंग में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट कंपनी में यहाँ पे कंपनी में जाऊंगी, अल्टर में जाऊंगी, 22 के डेटा में जाऊंगी, यहाँ पे मैं रीनेम करूंगी 2022-2023 एंड इसे आप ऐसे रीनेम कर सकते हैं। इसको क्लोज हो चुका है ये। सेकेंड ये 23-24 है जो स्प्लिट होके सेकेंड कंपनी क्रिएट हुई है 2023 एंड 2024। आप देख सकते हैं आपकी कंपनी ये ऐसे स्प्लिट होगी और आप ऐसे यहाँ पे आपको जो भी ओपनिंग रहेगा क्लोजिंग रहेगा वो न्यू कंपनी में ओपनिंग करके यहाँ पे शो करेगा। थैंक यू फॉर माय साइड। Okay, thank you Urmila and Payal for your presentation. So now it's a time for overview of the today's session. It's over to you, Bhagwati sir. Yeah. Thank you, team. So myself is Bhagwati Chandaria. So today's session is split the company and data moving the new financial year. जैसा कि आप जानते हैं अभी आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द 1st of April. There is only 10 days. So in these terms, in base of this
date, you have to prepare your data accordingly, ताकि आप अपने डेटा को ऑन टाइम स्प्लिट कर पाए और 1 अप्रैल से अपने काम को स्मूथली कर पाए। तो इसके लिए आपको अपने डेटा को काफी तरीके से, जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं, एवरी ट्रांजेक्शन यू हैव टू पुट इन दिस करंट डेटा एंड दिस फाइनेंशियल ईयर, ताकि आप अपने डेटा को स्प्लिट कर पाए। और स्प्लिट करने का बहुत ही आसान तरीका है जो हमने आज आपको हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में बताया है। और स्प्लिट क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। सो आप इन सभी टिप्स को फॉलो करें, यूटिलाइज करें। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे जितने भी सेशंस होते हैं, एवरी सेशन भी अपलोडिंग ऑन द आवर यूट्यूब चैनल। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से इन वीडियोस को देख करके आप उससे अपने टैली को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका एडवांटेज ले सकते हैं और अपने काम को स्मूथ कर सकते हैं। And as you know, most of the customers are using our YouTube channel as a academy, as a program, training programs. So आप पूरी टैली को अगर स्मूथली सीखना चाहते हैं तो there is a lot of videos, हर एक फीचर्स को अलग अलग तरीके से बताया गया है, आप उसको जरूर देखें। इससे आप अपने टाइम के अनुसार, अपने समय, अपनी इच्छा अनुसार आप पूरी टैली को सीख पाएंगे और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, हाउ यू कैन यूटिलाइज दैट ऑल द फीचर्स इन योर बिजनेस, ये सभी चीज़ों को एनालिसिस करके आप अपडेट कर पाएंगे अपने टैली को और अपने बिजनेस को पर ज़्यादा फोकस्ड कर पाएंगे। और उसकी रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस आपको फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड एंड मिनट्स एंड फिंगर टिप्स पे आपको मिल पाएगी। दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द टुडे सेशन। So that's it from my side. It's over to you. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. So thank you everyone for joining today's session. So now we'll wind up the session. Thank you.